Okay, so you have a double slit diffraction. Okay, so for this we have drawn this diagram, right? You have a two identical slit. Okay, आइडेंटिकल का मतलब क्या है, हर एक का जो विथ है दैट इज स्मॉल है, ठीक है. एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द स्लिट, दैट डिस्टेंस वाज हाउ मच, दैट वाज स्मॉल डी, ठीक है. और ये जो सेपरेशन था, ठीक है ना, ये कितना था, बी था, ठीक है ना. सो डी कैन बी रिटन एज व्हाट, ए प्लस बी. एंड देन यू हैव ए screen, right? You have a screen. Let us assume this separation is how much? Let us assume this separation is how much? That is your capital D. ठीक है ना. अब मैंने क्या बताया था, suppose this is your central point. Suppose this is your central point on that screen. The point Q. ठीक है. I have assumed a point, arbitrary point Q on that screen. This is your screen. ठीक है. अब यहाँ पे जो आपका पैटर्न बनेगा, whether it is bright or dark, तो दो फेनोमेना के कारण बनेगा, ठीक है. एक आपका डिफ्रैक्शन के कारण बनेगा. सो हर स्लिट से जो आपका रे जा रहा है, दैट रे इज बेसिकली डिफ्रैक्टेड रे, राइट. दिस रे इज बेसिकली डिफ्रैक्टेड रे. सो OAB of diffracted ray from this upper slit, that can be written as Y equals to Y naught sine of omega t minus beta. Okay, and Y naught was how much? Y naught, if you remember, that was A naught sine beta. Sine beta upon beta. Exactly. And beta was how much actually? Beta was nothing but pi by lambda A sin theta. A sin theta. And you know every parameter, because in single slit we have discussed this parameter. What is theta, what is A, everything, right? Okay. So similarly, wave equation for the ray, for the diffracted ray coming from other slit, that can be written as what? Let us assume this is as a Y1. This is as a Y1. So this wave equation can be written as what? Yesterday we have discussed. This is can you please tell me? Y naught, then Y you naught have sine sine omega t minus beta omega t minus beta, then you have minus delta. lambda Not delta. delta. I have assumed delta. You can assume lambda also. That's not a problem. Okay, so there is some phase difference, delta, right? This phase difference can be calculated like Young double slit. Okay, so suppose मान लो separation between two slit is D. Separation between two slits is how much basically है? कितना है? मैं center से center लूंगा, है ना? तो ये basically कितना है? D है. So this length is D. So I can calculate this length. ये length कितना हो जाएगा? ये length आपका D sin theta हो जाएगा. ठीक है. So delta is basically here, that parameter delta is basically representing the phase difference between these two diffracted ray. That phase difference will be how much? Delta will be 2 pi by lambda into d sin theta. Because जो दो diffracted beam है, उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है? ये जो बीम है और ये जो बीम है, इनके बीच में पाथ डिफरेंस है, that is d sin theta. So delta is the phase difference between these two rays. You can see from this phase factor. So that is basically 2 pi by lambda d sin theta. So I got this parameter beta, Y naught and delta. Please note this parameter, because this will help you to understand this diffraction pattern on that screen for double slit. So ये जो है डेल्टा बीटा Y naught के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है. Then जो आपका resultant intensity बनेगा वहां पे, तो यहाँ पे जो मैं रिजल्टेंट इक्वेशन OAB इक्वेशन लिखूंगा एट पॉइंट Q, दैट विल बी हाउ मच? Resultant OAB equation at point Q, that will be Y net. So this will be the vector sum of Y1 plus Y2. Is this part clear to all? Yes, sir. ठीक है. Yes sir. अब Y1 कितना है आपके पास? Y naught sine omega t minus beta. I can take Y naught as a common, right? Inside bracket from Y1, what I can write? Sine
sine omega t minus beta. Okay, minus beta. Then what I can write? I can write like minus delta by 2. I can add delta. I can subtract that delta by 2. Then I can add. It will give you same thing. So first, this sine omega t minus beta can be written like this: sine omega t minus beta minus delta by 2 plus delta by 2. So this delta by 2 will be cancelled. Exactly, we'll get omega 2 minus beta. Is this part clear to all? Yes, sir. And second term, how I'll write? We already have taken y naught common. So basically, I'll write this phase factor like omega t minus beta. And then I can write minus delta by 2 minus delta by 2. So in place of delta, I can write like this, right? Is this part clear to all? Yes, sir. Okay. So this minus delta by 2 will be minus delta. Now this thing I'll assume, this parameter omega t minus beta minus delta by 2, that I'll assume that is capital A. And this delta by 2, that is capital D. So here also I can write, this is your capital A and this is delta by 2 your capital B. ठीक है. अब मैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करूंगा. ठीक है. तो अगर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करूंगा तो व्हाट आई कैन राइट साइन A ओमेगा टी माइनस बीटा माइनस डेल्टा बाय 2. delta by 2 ठीक है. देन साइन ए कोसाइन बी. बी इज हाउ मच? बी इज व्हाट? delta by 2. एग्जैक्टली, बी इज डेल्टा बाय 2. ठीक है. शैल आई इरेज दिस पार्ट? आप लोगों ने लिख लिया है? ठीक है. नाउ then you will have sine A, sine A plus B. So second part will be what? Cosine, right? Cosine Cos omega t minus beta, then minus delta by 2. Delta by 2. Delta by 2. Exactly. Then you will have sine of delta by 2. Similarly, I can write this also, but this will be sine A minus B. So I'll use sine A minus B formula. So first term will be sine of omega t minus beta minus delta by 2 and cosine delta by 2, right? Sine A cosine B. But second term, in second term you will have minus, right? So minus, it will be cosine of omega t minus beta minus delta by 2. Then you have sine of delta by 2. Is this part clear to all? Nothing I have done, just I have used this formula sine A plus B and sine A minus B. Okay. Now can you look this term, cosine omega, this second term and last term? Can you check? They are exactly same, but their sign are opposite, right? They're exactly same. You can see. You can see they are exactly same, but their sign are basically opposite. So this will be cancelled. Second term and fourth term, they will be cancelled. And also first term and third term, they are basically identical with same sign. So what I'll get? Also this will be what? This will be y naught, right? So basically y naught will be how much? Can you please tell me? कितना हो जाएगा बताओ? Y naught basically you'll get twice y naught because we'll have two terms. So twice y naught, then cosine of delta by 2 sine of omega t minus beta minus delta by 2. Is this part clear to all? Yeah, clear? Clear? Okay. Okay. Shall I erase this part? I will erase and I'll write them. Okay. Okay. So this is the resultant wave equation at point Q on that screen. ठीक है. अब इस वेव का कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड पार्ट? क्या इस वेव का एम्पलीट्यूड पार्ट कितना है? कैन यू प्लीज टेल मी एम्पलीट्यूड कौन सा होगा? दिस विल बी योर एम्पलीट्यूड पार्ट. Why not? This is not why not. This will be the amplitude part and this is your oscillating part. भाई आपका जो वेव इक्वेशन आप लिखते हो क्या होता है आपका? A नॉट इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव समथिंग,
ठीक है, जो टाइम डिपेंडेंसी फैक्टर है, दिस इज बेसिकली योर ऑसिलेटिंग फैक्टर, this is your oscillating factor, but other time independent part is basically representing the amplitude. ठीक है, so time dependency part क्या है यहाँ पे, sin omega t minus beta minus delta y. So amplitude will be how much? This is not y naught. You can make a mistake here. This will be the resultant amplitude of wave at point Q on that screen. So I can write resultant amplitude of this wave, that will be AR. AR will be how much? AR will be nothing but twice y naught then cosine of delta by 2. And we already know what is y naught actually. Y naught कितना है भाई बोलो? Sin of beta divided by beta cosine of delta by 2. Exactly, right? So this is your resultant amplitude. Now you can see this resultant amplitude contains two terms. This sin beta by beta, this term is arising because of what? If you see that single slit term, single slit में भी sin beta by beta आते हैं, नहीं? Single slit में भी आते हैं, देखे हो आप लोगों ने? नहीं आते? So this sin by beta, this term is arising because of diffraction phenomena. Because of diffraction phenomena. ठीक है ना? जो बीटा हम लोगों ने डिफाइन किया था, बीटा कितना डिफाइन किया था हम लोगों ने, बताओ? पाई बाई लैम्डा ए साइन थीटा, राइट? ठीक है, यहाँ पे थीटा क्या है? यहाँ पे थीटा क्या है बताओ? थीटा जो है that is the angle between ray number 1 and ray number 100 in a single slit. So this beta factor is basically depends upon what? Diffraction parameter. Beta factor किसके ऊपर डिपेंड करेगा? Diffraction parameter के ऊपर. That's why this term is actually corresponds to what? Sin by beta. This term corresponds to what? This corresponds to diffraction phenomena. And this term cosine delta by 2. Delta by 2 is arising because of what? 2 pi by lambda d sin theta. ठीक है ना? ठीक है ना? तो ये आपका d sin theta किसके बीच में पार्ट डिफरेंस है? d sin theta किसके बीच में पार्ट डिफरेंस है? जो आपका स्लिट 1 से जो बीम जा रहा है और स्लिट 2 से जो बीम जा रहा है, उनके बीच में पार्ट डिफरेंस है ना? समझ रहे हो ना? दो स्लिट से जो आपका बीम जा रहा है उनके बीच में पार्ट डिफरेंस है. सो दो बीम के बीच में जो पार्ट डिफरेंस है ना, तो वो आपका बेसिकली डेल्टा रिप्रेजेंट कर रहा है. सो दिस टर्म एक्चुअली बेसिकली डिपेंड्स अपॉन व्हाट? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस. तो यहाँ पे दो टर्म है, एक आपका किसके कारण बन रहा है? डिफ्रैक्शन के कारण बन रहा है, दूसरा आपका क्या है? इंटरफेरेंस के कारण. ठीक है, तो यहाँ पे दो टर्म है. ठीक है, तो इंटेंसिटी कितना होगा रिजल्टेंट वेव का? इंटेंसिटी कितना होगा बताओ? तो आपका वाई नेट बेसिकली कितना हो गया? वाई नेट कितना लिख सकते हैं हम? अगर AR is this parameter, then I can write Y naught is nothing but AR into sin of omega t minus beta minus delta by 2. ठीक है, ये आपका Y net हो जाएगा, जहां पे आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है. सो इंटेंसिटी कैन बी रिटन एज एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, राइट? सो इट विल बी बेसिकली हाउ मच? इट विल बी बेसिकली, इसका अगर स्क्वायर करोगे फिर क्या मिलेगा? अच्छा, यहाँ पे वाई नॉट, यहाँ पे एक और टर्म थे शायद, राइट? आप लोगों ने बताया नहीं. यहाँ पे एक और टर्म थे ना, ए नॉट थे ना? यहाँ पे एक ए नॉट भी होंगे ना? हमें करेक्ट? हाँ, यस सर. एक ए नॉट भी होंगे. सो इफ यू द इंटेंसिटी इज नथिंग बट मॉड ऑफ AR स्क्वायर. तो इसका स्क्वायर करोगे फिर क्या मिलेगा आपको? 4. 2 का स्क्वायर 4. ए नॉट का स्क्वायर क्या मिलेगा? दैट विल बी आई नॉट, देन साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर cosine square delta by 2. So again you can see this factor is corresponds to what? This corresponds to diffraction, and this cosine square delta corresponds to what? Interference. Because delta representing that path difference, or sorry, phase difference between two ray coming from what? Two different slit, and beta is corresponds to phase difference between ray number 1 and ray number 100 in a single slit. So this corresponds to diffraction, this corresponds to interference. Okay, is this part clear to all? If you have doubt, please clear.
ठीक है ना, अब बताओ। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ केस नंबर 1। ठीक है, अगर सपोज मान लो आपका जो स्लिट विड्थ है, स्लिट विड्थ कितना है हर एक स्लिट का? स्मॉल है, राइट? अगर स्मॉल है टेंस टू 0 है, मतलब स्लिट विड्थ काफी छोटा है। If slit width tends to 0, we know beta is how much basically? Beta बताओ आप लोग, 2 pi by pi by lambda a sin theta होते, right? Yes, sir. And delta is how much? 2 pi by lambda d sin D theta. sin theta. ठीक, अगर a tends to 0 है, अगर स्लिट विड्थ जो है 0 की तरफ है, बीटा कितना हो जाएगा बताओ? बीटा टेंस टू व्हाट? 0. जब आपका स्लिट विड्थ काफी छोटा है हर एक स्लिट का, तो बीटा टेंस टू 0 है। अच्छा, बीटा टेंस टू 0, तो लिमिट बीटा टेंस टू 0 साइन बीटा बाई बीटा कितना होता है बताओ? कितना होते हैं? 1. एग्जैक्टली 1. ऑन। नाउ इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? यस, यू हैव क्वेश्चन? डू यू हैव अ क्वेश्चन एनीवन? समवन आस्किंग समथिंग? एनी क्वेश्चन इज देयर? ओके, सो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा आप देखो, बताओ आप लोग। सो दिस फैक्टर विल बी हाउ मच इस केस में? साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। सो बेसिकली यू विल गेट इंटेंसिटी दैट विल बी 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा बाई 2। ठीक है, इस तरह की इंटेंसिटी कहां पे मिलते हैं बताओ? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मिलता है। तो जब आपका दोनों स्लिट का विड्थ काफी छोटा है, जो आपका दो स्लिट है, जो आपका जो स्लिट है उनका विड्थ अगर काफी छोटा है या काफी छोटा है, तो आपका डबल स्लिट डिफ्रैक्शन जो फेनोमेना है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? यंग डबल स्लिट इंटरफेरेंस में। यंग डबल स्लिट इंटरफेरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इज दिस पार्ट क्लियर? क्योंकि यहाँ पे आपका कोई डिफ्रैक्शन का कोई टर्म नहीं है अब। सो व्हेन द स्लिट विड्थ इज स्मॉल, सो स्मॉल, then double slit diffraction phenomena can be converted into simply young double slit interference phenomena, young double slit interference phenomena। ठीक है, now case number 2। now let us assume if d tends to 0, if d tends to 0, d tends to 0 का मतलब क्या है? d एक्चुअली क्या थे आपका बताओ? da सेपरेशन था, राइट? तो स्लिट के बीच में सेपरेशन था, है ना, सेंटर से सेंटर। अगर ये आपका 0 हो गया मतलब क्या है? कोई बैरियर नहीं है, दोनों स्लिट क्या हो गया? मर्ज हो गया, इनके बीच में कोई ओपेक नहीं है, मतलब इस तरह की है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? इज दिस पार्ट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? इफ d इज 0 देन व्हाट डज इट मीन? d क्या था आपके पास? दो स्लिट के बीच की दूरी। दो स्लिट के बीच में आपका दूरी था, एग्जैक्टली ये जो स्लिट था। ठीक है, तो ये सेपरेशन 0 का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं, दिस स्लिट लेंथ नहीं है। विल बी, दिस लेंथ विल बी 0, मतलब इनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं है। सो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग इन दैट रिजल्ट? किस तरह का रिजल्ट मिलना चाहिए इंटेंसिटी में? व्हाट टाइप ऑफ इंटेंसिटी यू आर एक्सपेक्टिंग? देयर इज नो डबल स्लिट हेयर, एक ही स्लिट होगा। जब d टेंस टू 0 है इसका मतलब क्या है? आपके पास दो स्लिट क्या हो गया? मर्ज हो गया ना। तो एक्चुअली टू स्लिट्स इज कन्वर्टिंग इनटू वन स्लिट। तो वहां पे क्या मिलना चाहिए? सिर्फ इंटेंसिटी पैटर्न में सिर्फ डिफ्रैक्शन फेनोमेना मिलना चाहिए, राइट? सिर्फ डिफ्रैक्शन फेनोमेना मिलना चाहिए, बिकॉज यू हैव ओनली वन स्लिट। तो d टेंस टू 0 में क्या हो जाएगा देखो? डेल्टा टेंस टू 0, डेल्टा टेंस टू 0, राइट? अब डेल्टा टेंस टू 0 तो कोसाइन स्क्वायर 0, कोसाइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2, इसका मतलब क्या है? कोसाइन स्क्वायर 0 है, दैट विल बी ऑन। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा इस केस में? दिस विल बी ऑन, दिस विल बी हाउ मच? ऑन, दिस विल बी
1। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगा बताओ, कितना हो जाना चाहिए? तो ये टर्म कितना हो जाएगा, हो गया कोसाइन स्क्वायर डेल्टा, डेल्टा बाई 2 4I0 नहीं 4I0, so I will be how much, it will be 4I0। 4I0 ये वाला भी टर्म तो रहेंगे, ये वाला टर्म कहाँ जाएंगे सेकंड केस? सेकंड sir. केस एक्चुअली है Sin क्या, x ये square. वाला केस है। तो इस केस में डेल्टा जब 0 हो जाएगा, कोसाइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2, सो कोसाइन स्क्वायर इज 0, दैट विल बी 1, so this term will be left, so net intensity I can write 4I0 sin square beta Upon beta square. by beta square, है ना? This will be your net intensity. So you can see there is no interference term here, यहाँ पे कोई interference term नहीं है। इस तरह की आपको इसमें भी मिला था सिंगल स्लिट में। अब यहाँ पे आपका 4 का मल्टीप्लाई हो गया, देखो सिंगल स्लिट में आपको कितना मिला था इंटेंसिटी, I0 sin स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर। यहाँ पे 4 क्यों मिला है, क्योंकि आपके पास जो है जब स्लिट हुई तब अपने जो इंटेंसिटी ए नॉट किसके ऊपर डिपेंड करता है, ए नॉट किसके ऊपर डिपेंड करता है बताओ, स्लिट विथ के ऊपर डिपेंड करता है। अब जब दो स्लिट अपने मर्ज कर दिया तो विथ कितना हो गया, डबल हो गया, है ना? तो ए नॉट भी क्या हो जाएगा आपका, डबल हो जाएगा। सो 2 ए नॉट का स्क्वायर मिलेगा, दैट विल गिव यू 4I0। So that's why you are getting that factor 4I0. Is this clear why this 4I0 is coming? If you remember, for single slit it was exactly like I0 sin square beta by beta square. But when you are merging these two slits, the width of this slit will be double. Okay, and A0 is basically depends upon what factor? It depends upon slit width. If slit width is double, A0 will be double. So in place of I0 you will get, so I0 is basically what? I0 is nothing but A0 square. I0 is nothing but A0 square, right? अब A0 की जगह पे आप 2A0 लिखोगे तो obviously you will get 4I0 here, ठीक है ना? Is this part clear? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो for this case you will get only diffraction pattern. For this case that intensity part will contain only there will be no interference term here. Is this क्या इतना आप लोगों को क्लियर है? If it is clear then I can proceed. Yes, sir. Okay. Then you have position of minima and maxima, ठीक है? आप लोग कितना क्वेश्चन करते हो क्लास के बाहर, प्रॉब्लम सॉल्व करते हो बताओ, एवरेज पर डे? कितना करते हो आप लोग? 15 से 20 सर। 15 से 20 कहाँ से करते हो आप लोग? सॉरी, बुकलेट से PYQ हाँ PIQ होते हैं आप लोगों से? सर। डिफिकल्टी कहीं पे जो होते हैं समझ लेते हैं। समझ लेते हो, ठीक है। बाकी लोग बताओ। हाँ सर करते हैं सर। हाँ प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी है, और ऐसा नहीं कि ऐसा प्रॉब्लम तो हो ही सकता है कि आपका नहीं हो रहा है, डाउट भी होता है। कहीं कहीं हम सॉल्यूशन देख लेते हैं ना, फिर सॉल्यूशन से समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत समझ में आता है, कुछ समझ में भी नहीं आता है, बट उस टाइम आपको क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? ठीक है ना? तभी तो आपको जो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स होंगे आपका, आप जो जब एग्जाम दोगे ना तो आपका अच्छा होगा। अगर आप PIQ को समझ के कर पा रहे हो, इफ यू आर डूइंग वेल देन यू विल डू दैट योर अपकमिंग एग्जाम में भी आप अच्छा करोगे, ठीक है ना? तो PIQ को आप देखो कि आप उसमें कंफर्टेबल हो कि नहीं, है ना? और खूब डाउट पूछा करो आप लोग, ठीक है ना? देखो हमारा गोल क्या है, आपको पढ़ाना है, और इसीलिए आपको हमारा जो भावना है उसको समझना चाहिए, और स्टूडेंट का जो भावना है आपको समझना चाहिए, ठीक है ना? तो आप लोग क्या कर रहे हो, किस वे में प्रिपरेशन कर रहे हो, वो जानना हमारा बहुत जरूरी है, ठीक है ना? तो अटैच में रहो, है ना? देखो आपके सामने आप लोगों का ये है
नेट में कितना अच्छा रैंक किया है ना, 16 रैंक किया है, तो आप लोग को से भी एक्सपेक्ट है कि सारे लोग इस तरह की रैंक ही करो, है ना, रैंक सर लाओ, ठीक है। इसके लिए मेहनत करो, टीचर से ये करो कि कैसे प्रिपरेशन किया जाए, स्ट्रेटजी किस तरह की होना चाहिए, ठीक है। आई एम श्योर यू पीपल विल डू वेल, ठीक है। बट डाउट क्लियर करो, है ना, क्लास के बाहर भी, और जो भी होमवर्क देते रहे है ना उसको करो आप लोग, ठीक है। टाइम थोड़ा सा आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा अच्छी चीज के लिए, नहीं। चलो, नाउ विल डिस्कस द पोजीशन ऑफ minima, position of minima and maxima, ठीक। तो की होता है, ठीक है। पहले लेट मी क्लियर दिस पार्ट। एक आपका प्राइमरी मिनिमा होता है, ठीक है, एक आपका एक साइड से प्राइमरी। नॉइज आ रहा है। नॉइज आ रहा है, अरे यहाँ से आपका प्रॉब्लम है थोड़ा, एक मिनट देखो। एक्चुअली क्या है ना, ये वायर है, वायर में लग जाता है, फिर नॉइज क्लियर ये हो जाता है। अभी बताओ, आ रहा है सर। अभी भी। नाउ कैन यू प्लीज टेल मी। आ रहा है सर। अच्छा, फिर से आ रहा है। अब क्या है ना, आपका जो वायर में लग जाता है, फिर वो प्रॉब्लम करता है। आप बताओ, अभी भी आ रहा है? सर जब ठीक हो जाएगा बताना। आप बताओ, सर अभी भी आ आ रहा रहा है है? सर। सर अभी भी आ रहा यस है सर, ना? ज्यादा आ रहा है। अभी? आ रहा है। आ रहा है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, एक मिनट, मैं हेडफोन चेंज कर देता हूँ उसको। अभी बताओ, आ रहा है सर नॉइज। आ रहा है सर। अभी भी आ रहा है? नाउ कैन यू प्लीज टेल मी। आ रहा है सर। अभी भी आ रहा है? सर बट अब कम है। कम है? एस लेस सर। अच्छा, एक मिनट, अभी बताओ। अभी भी आ रहा है? भी नहीं नहीं आ आ रहा रहा है सर। सर। अभी नहीं आ रहा है, चलो चलो। क्या है ना, वायर मेरे पैर में लग जाता है, ठीक है। तो आपका प्राइमरी मिनिमा होता है, एक आपका सेकेंडरी मिनिमा होता है। सेकेंडरी मिनिमा होता है, ठीक है। जो प्राइमरी मिनिमा बनते हैं ये बेसिकली डिफ्लेक्शन के कारण बनता है। आई विल डिस्कस व्हाई, ठीक है। जो सेकेंडरी मिनिमा बनते हैं ये आपका बेसिकली किसके कारण बनते हैं? इंटरफेरेंस के कारण बनते हैं। और जो आपका मैक्सिमा बनते हैं बेसिकली, दिस मैक्सिमा और बेसिकली प्राइमरी मैक्सिमा, दिस इज बेसिकली प्राइमरी मैक्सिमा, ठीक है ना। और ये किसके लिए बनते हैं आपका? ओनली बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस, ठीक है, ओनली बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस, ठीक है। तो हमको पोजीशन कैलकुलेट करनी है हर एक प्राइमरी मिनिमा का, हर एक सेकेंडरी मिनिमा का, और मैक्सिमा जो बनते हैं बेसिकली वो आपका प्राइमरी मैक्सिमा होता है, ठीक है, उनका भी पोजीशन हमको निकालनी है, ठीक है। और हर एक फेनोमेना का जो प्राइमरी मिनिमा बनते हैं डिफ्लेक्शन के कारण बनता है, सेकेंडरी मिनिमा जो बनते हैं इंटरफेरेंस के कारण बनता है, प्राइमरी मैक्सिमा इंटरफेरेंस के कारण बनते हैं। तो बेसिकली डबल स्लिट का जो पैटर्न देखोगे स्क्रीन पे किस तरह के दिखते हैं, आपको इस तरह के कुछ दिखते हैं। यू विल गेट ए हाईली इंटेंस सेंट्रल ब्राइट पीक, ठीक है, इस तरह की मिलता है। देन यू विल गेट दिस काइंड ऑफ पीक, ठीक है, फिर कुछ गायब हो जाएगा, ठीक है, गायब होकर फिर यहाँ से शुरू होगा इस तरह से। इधर भी इस तरह की मिलेगा, सिमेट्री काइंड ऑफ थिंग होता है, इधर भी आपको इस तरह की मिलता है।
तरह की आपको पीक मिलता है। तो इसको अगर जोड़ोगे, you'll get this kind of तो ये जो आपका इन्वेलप है बाहर, ये जो बाहर आपका इन्वेलप है, ये आपका बेसिकली डिफ्रैक्शन इन्वेलप है, डिफ्रैक्शन इन्वेलप। ठीक है, ये जो आपका बाहर का जो पैटर्न मैंने डैश डैश देके लिखा हूं, ये आपका बेसिकली डिफ्रैक्शन इन्वेलप है। और जो इन्वेलप के अंदर जो आपको पीक दिख रहा है, ये सारे पीक, दिस पीक आर बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली interference. So these peaks are coming due to the interference phenomena, and this outside envelope, this is like this is your diffraction envelope. तो प्राइमरी पहले तो क्लियर कर लेते हैं क्या प्राइमरी मिनिमा क्या है। प्राइमरी मिनिमा मतलब जो देखो ये आपका डिफ्रैक्शन का पैटर्न है, ऊपर जो आपका इन्वेलप है ये डिफ्रैक्शन का पैटर्न है। तो डिफ्रैक्शन के कारण मिनिमम इंटेंसिटी कहाँ मिल रहा है, ये एक पॉइंट है, ठीक है, और इधर कहाँ मिल रहा है, ये एक पॉइंट है। तो जो आपका मिनिमा मिलता है, बढ़िया वाला मिनिमा मिलते हैं, वो किसके कारण मिलता है, वो डिफ्रैक्शन के कारण मिलता है। ये जो मिनिमा है, जो बाहर का इन्वेलप है, उसका इंटेंसिटी 0 कहाँ पे शो हो रहा है, एक इस पॉइंट में होगा, फिर ये वाला पॉइंट भी है, लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला है, फिर ये वाला है। तो बढ़िया वाला जो आपका मिनिमा मिलता है, वो डिफ्रैक्शन का जो ये है मिनिमा है, वही आपका बढ़िया वाला मिनिमा है। ठीक है, तो ये आपका प्राइमरी मिनिमा है। दिस पॉइंट दे आर बेसिकली प्राइमरी मिनिमा, ऑल्सो दिस पॉइंट। अब सेकेंडरी मिनिमा, ये आपका इंटरफेरेंस पैटर्न है इनसाइड, ये जो पीक मिल रहा है ये आपका बेसिकली इंटरफेरेंस पैटर्न है। सो इंटरफेरेंस का जो मिनिमा है, ये सारे मिनिमा, दिस मिनिमा आर कॉल्ड बेसिकली सेकेंडरी मिनिमा। तो सेकेंडरी मिनिमा किसके कारण बन रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस। तो ये आपका इंटरफेरेंस का पीक है, इनका जो मिनिमा है, दिस मिनिमा आर कॉल्ड सेकेंडरी मिनिमा। और प्राइमरी मैक्सिमा, ये सारे जो पीक है, ये सारे जो पीक है आपका, ये सारे पीक को बोलते हैं प्राइमरी मैक्सिमा। ठीक है, प्राइमरी मैक्सिमा। इज दिस पार्ट क्लियर? सो इस तरह की आपको कुछ पैटर्न मिलेगा, है ना। ठीक है, सो इंटेंसिटी आपका देखो, जैसे जैसे आपका वार्डर बढ़ता जा रहा है, आपका इंटेंसिटी घटता जा रहा है पीक का, है ना। और यहाँ पे एक पीक आना चाहिए था, देखो एक पीक आया, ठीक है ना, दूसरा पीक आया, तीसरा पीक आया, चौथा पीक का क्या हो गया, गायब हो गया, है ना। ये हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी एक पीक, दो पीक, तीन पीक, यहाँ पे एक पीक आके, यहाँ पे एक पीक होना चाहिए था, बट वो गायब हो गया, मिसिंग हो गया, है ना। तो इस तरह की आपका पैटर्न मिलते हैं। ठीक है, अब पहले तो हम डिस्कस करते हैं पोजीशन ऑफ प्राइमरी मिनिमा। ठीक है, सो इफ यू रिमेंबर इंटेंसिटी वाज हाउ मच, कैन यू प्लीज टेल मी, रिमाइंड मी, कितना इंटेंसिटी था आपका आई नॉट, कैन यू प्लीज टेल मी। जो रिजल्टेंट आई नॉट आई था, दैट वाज आई नॉट इंटू 4 आई नॉट इंटू साइन स्क्वायर बीटा by बीटा स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा by 2। एग्जैक्टली, सो इट इज cos स्क्वायर डेल्टा बाई। ठीक है ना। अब देखो मिनिमा, तो पहले यहाँ पे हेडिंग लगाओ आप, पहले आप लिखो प्राइमरी मिनिमा। ठीक है, प्राइमरी मिनिमा हेडिंग लगाओ। ठीक है, अब मिनिमा के लिए आई कितना हो जाएगा, मिनिमा के लिए आई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मिनिमा के लिए आई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये 0 किसके कारण हो रहा है, प्राइमरी मिनिमा 0 किसके कारण हो रहा है, डिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है। और डिफ्रैक्शन में कौन सा टर्म है, डिफ्रैक्शन में आपका ये वाला टर्म। सो व्हाट आई कैन राइट, व्हेन आई इज 0, that is happening because of diffraction, so this term should be 0. So what I can write from here, that sine square beta by beta square, that should be equals to how much, that should be equals to 0 for primary minima. So from here I can again write that sine beta should be equals to 0,
And since sine beta A is 0, I can write beta that should be equals to how much? That should be equals to n pi. And n can be what here? n क्या हो सकता है? n cannot be 0. I'll come to that conclusion. I can come to that discussion why n cannot be 0. यहाँ पे देखो sin beta equals to 0. So beta can be n pi. So when n is 0, this will also satisfy that sin beta equals to 0. But n 0 allowed नहीं है ना? n can be on 2, 2, 3 so on. ठीक है ना? यहाँ से बीटा इक्वल्स टू बीटा कितना था आपके पास? बीटा कितना था? कैन यू प्लीज टेल मी? पाई बाय लैम्डा A A sin theta. that was how much? That should be equal to how much? n pi. And please note n cannot be 0. n on 2, 3 हो सकता है but 0 नहीं हो सकता है. I'll come. So from here I'll get this pi will be cancelled and I'll get A sin theta. That should be equal to how much? That should be equal to n lambda. A sin theta that should be equal to n lambda. ठीक है, इस तरह की आपको इसमें भी मिला था सिंगल स्लिट में, है ना? डू यू रिमेम्बर दैट मिनिमा के लिए ये कंडीशन मिला था? ये sin theta equals to n lambda. यहाँ पे प्राइमरी मिनिमा के लिए ये कंडीशन है. अब देखो n 0 क्यों नहीं पॉसिबल है? n 0 कब होगा? अगर यहाँ पे सपोज मान लो आपने 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, सो a sin theta equals to 0 है ना? a sin theta equals to 0. इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू क्या है? 0 है. थीटा 0 कहाँ पे होता है? थीटा 0 कहाँ पे होता है? If you take n equals to 0 here, then you will get a sin theta equals to 0. A cannot be 0, so sin theta will be 0. So sin theta equals to 0, it means theta equals to 0. तो थीटा 0 कहाँ पे पॉसिबल है? सेंट्रल पॉइंट पे. कोई आपका एक स्लिट है, स्लिट का स्क्रीन में अगर सेंट्रल पॉइंट देखोगे, ये आपका दिस पॉइंट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग थीटा इक्वल्स टू 0. बट सेंट्रल पॉइंट तो हमेशा क्या होता है आपका? बताओ. सेंट्रल पॉइंट, कोई स्लिट का सेंट्रल पॉइंट क्या होता है हमेशा? सेंट्रल पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग, हाँ, सेंट्रल पॉइंट की कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका स्क्रीन है वो हमेशा क्या होता है? ब्राइटेस्ट होता है. दैट्स व्हाई n कैन नॉट बी 0. अगर n 0 हो गया तो आपका थीटा 0 हो जाएगा. एंड थीटा 0 बेसिकली रिप्रेजेंटिंग दैट पॉइंट दैट इज लोकेटेड at the central of that fringe, central of this your slit. So this point will be bright. So यहाँ पे आपका इंटेंसिटी मिनिमा नहीं मिलेगा. That's why n cannot be 0. ठीक है, ओके. अब बताओ हमने क्या बोला था? थीटा क्या होता है? बेसिकली स्मॉल होता है. थीटा क्या होता है? बेसिकली स्मॉल होता है. So I can write the angular position of nth primary minima. That can be written as nth dark. So that can be written as what? N lambda by A. Angular position of nth primary minima. So that will be theta nd. Theta nd, sin theta को क्या लिख सकते हो? आप theta लिख सकते हो because theta is what? Theta is small. So this will be the angular position. Again, I can write y nd. Can you please tell me anyone how much will be that y nd? कितना हो जाएगा बताओ? N d lambda by Exactly. So it A. will be n d n lambda by A. And n क्या क्या हो सकता है? n can be 1, 2, 3. So y n d basically representing that position of nth primary minima. Am I correct? ठीक है. Yes sir. और जो कैपिटल D होता है किस क्वार्टर में होता है? मतलब that can be like focal length. ये होता है, आप लोगों को पता है ये पार्ट? Yes sir. So in place of capital D, I can write focal length of lens. So y of nd can be written as what? N f lambda by A. So this will be the position of nth primary minima. Is this part clear what I am saying? So this is also, डबल स्लिट में भी हम लेंस रखेंगे. हाँ, अगर लेंस आपने रखे हो, so then you can substitute that. You can, हाँ, you have to use this also to make that beam focus on that screen. Okay. Is this part clear to all?
Okay, now we'll discuss second part, that is secondary minima. Okay, so again for secondary minima, again I will be how much? It will be 0, and that is because of what? That is because of interference. अब interference में कौन सा term represent कौन सा term है? So आपका I कितना था? 4 I naught sin square beta by beta square cosine square delta by 2, यही था. अब ये I 0 किसके लिए हो रहा है? इंटरफेरेंस के कारण 0 हो रहा है, और इंटरफेरेंस कौन सा टर्म है? ये वाला टर्म है. सो इट मींस cos स्क्वायर डेल्टा बाई 2 कितना होना चाहिए? बताओ आप लोग, कितना होना चाहिए? प्लीज टेल मी. डिड यू गेट व्हाट आई एम? नो भाई, आपका सेकेंडरी मिनिमम में आई क्या हो रहा है एक्चुअली? बताओ, मिनिमम में आई कितना है? मैंने जो ड्राइंग था वो 0 होना चाहिए. अब 0 किसके लिए हो रहा है? कौन सा फेनोमेना के लिए हो रहा है? मैंने बताया था, जो सेकेंडरी मिनिमा जो हो रहा है किसके लिए हो रहा है? आपका इंटरफेरेंस के लिए हो रहा है. तो आई एक्चुअली 0 हो रहा है इंटरफेरेंस के लिए. so, इस टर्म के लिए 0 हो रहा है. इसका मतलब क्या है? cos स्क्वायर डेल्टा बाय 2 दैट शुड बी इक्वल टू 0. So it means what I can write, cos delta by 2 that should be equal to 0, and this I can write like 2n plus on pi by 2, where n can be 0, on, 2, so on. Is this part clear? Actually this is not like this, this will be like cos, right? आपको आगे cos भी लगाना पड़ेगा एक, नहीं? What I am trying to say you that cos delta by 2 that should be equal to 0, and this should be equal to cosine of 2n plus 1 pi by 2. Am I correct? भाई cos delta by 2 0 कब होगा? जब cos का वैल्यू 2n plus 1 pi by 2 होता है, and n can be like 0, 1, 2, 3, so on. So from here I'll get delta by 2 that should be equal to how much? 2n plus 1 pi by 2. Okay, so this 2 will be cancelled and you will get delta. That will be how much? 2n plus 1 pi. अब डेल्टा कितना था बताओ आप लोग? डेल्टा कितना था? 2 pi by lambda. Delta was 2 pi by lambda, right? D sin theta, and that should be equal to how much? कितना हो जाएगा बताओ? You are not responding, you people. 2n plus 1 into pi. Exactly, it will be 2n plus 1 pi. अब जब रेस्पॉन्ड करते हो तो टीचर भी खुश होते, नहीं? I don't know why people are not responding. Okay, चलो यहां से आप बताओ d sin theta कितना हो जाएगा? d sin theta कितना हो जाएगा बताओ? So this pi will be cancelled, right? This pi will be cancelled, and you will get 2n plus 1 into lambda by 2. exactly. So 2n plus 1 lambda by 2. ठीक है ना? Okay. Now I can calculate the position of nth secondary minima or secondary dot. I can write. पहले वाला सिंबल क्या यूज किया था मैंने? nth secondary dot. I can use this formula, this symbol also. ये कितना हो जाएगा आपका? 2n plus 1 lambda by 2d. Position of nth secondary dot. ठीक है? Again I can write since theta is small, in place of sin theta I can write tan theta, and I can calculate that position of nth secondary dot. That will be how much? कितना हो जाएगा बताओ? 2n plus 1 d lambda by 2d. Exactly, 2n plus 1 d lambda by twice d, where n can be what? N can be 0, 1, 2, 3, है ना? प्राइमरी के लिए क्या था? n का वैल्यू कहाँ से शुरू हुआ था? प्राइमरी मिनिमा के लिए n का वैल्यू 1, 2, 3. 1, 2, 3. बट जो सेकेंडरी आपका मिनिमा है दैट कैन बी लाइक 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ठीक है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Now next part, position of, so this is actually representing the position of nth secondary
nth secondary minima. Minimum. Now position of what? Primary maxima. Primary maxima. Okay. So again I will write I equals to 4 I naught sin square beta y, sin square beta y beta square, then cosine square delta by 2. अभी मैक्सिमा किसके लिए हो रहा है? Why this maxima is coming? Because of interference. So Interference. this term should be equals to how much? Cosine square delta by 2, that should be equals to 1. Right? Cosine square, that should be equals to 1. It means cosine delta by 2, that should be equals to how much? By intensity primary maxima मतलब I equals to how much? I should be equals to I max. तो I max किसके लिए हो रहा है एक्चुअली? किसके लिए हो रहा है? That is because of interference. So interference का जो टर्म है that maximum होना चाहिए. तो ये टर्म maximum कितना पॉसिबल है? That maxima can be possible. Cosine का maximum का कितना पॉसिबल है? The value of cosine square, that maxima is 1. So from here I can write cosine delta by 2, that will be plus minus 1. So that means plus minus 1 मतलब क्या है? That should be equals to, I can write that delta should be delta by 2, that should be equals to n pi. N can be 0, 1, 2 and so on. ठीक है? So I will be I max, and this is because of what? This is because of interference. So this is arising because of interference. So this term should be equals to maximum. And it means cosine delta by 2, that should be equals to plus minus 1. So delta by 2, that should be equals to n pi. So delta कितना होना चाहिए? 2 n pi होना चाहिए. जहाँ पे n कितना होना चाहिए? 0, 1, 2 and so on. ठीक है? अब डेल्टा एक्चुअली है क्या? 2 pi by lambda d sin theta, and that should be equals to 2 n pi. Now this 2 pi will be cancelled with this 2 pi, and you will get d sin theta equals to n lambda. ठीक है? If you remember, d sin theta equals to n lambda कहाँ पे आपका आया था ये कंडीशन? d sin theta equals to n lambda कहाँ पे आया था ये कंडीशन? Do you remember? Young double slit experiment. जब दो रे के बीच में पाथ डिफरेंस of the order of lambda, then you will get constructive interference, right? And we know that sin theta can be written as what? Sin theta को क्या लिख सकते हैं हम? I n by, I'll write nb, position of nth bright divided by d, that should be equals to how much? That will be n lambda. तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा position of nth bright, that will be how much? n d lambda by d. देखो जरा चेक करो. So this will be the position of nth bright. ठीक है? And n can be like 0, 1, 2, 3 and so on. 0 representing which peak? 0 कौन सा peak represent कर रहा है? Can you please? Central. Exactly. So the 0 will be central peak. Then 1 will be first maxima, 2 will be second maxima and so on. Okay, इस तरह की है. क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. Sir. अब बताओ कोई डाउट है तो? Now there will be one important part of your double slit, that will be what? Missing order. Missing order से आप लोगों का basically question आता है. But time is already over, so it is good. Tomorrow we'll discuss this part, missing part. Okay, missing order. Okay. So इतना Okay, clear है sir. आप लोगों का? Yes, किसी का sir. कोई डाउट? Okay. सर Yes, हाँ, sir. सर ये सारे फॉर्मूला हमें याद रखना होगा क्या? हाँ, सारे फॉर्मूला देखो, बेसिकली जो आपका एग्जाम में जो फॉर्मूला जरूरी है वो मैं बताता हूँ आपको. एक तो ये जरूरी है आपका d इक्वल्स टू a प्लस डी, ये जरूरी है ना, ये जरूरी है. और a sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ये आपका यंग डबल स्लिट में भी आया था, सिंगल स्लिट में भी इसको ये मिला था आपको, डबल स्लिट में भी है. ये दोनों फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड कल जो मैं डिस्कस करूंगा, दैट इज मिसिंग ऑर्डर, दैट इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट. ये तीन फॉर्मूला आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है?
बाकी मैं प्रॉब्लम तो करवाता हूँ, मैं एक्चुअली डिफ्रैक्शन का प्रॉब्लम एक साथ करवाऊंगा, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ। कल कुछ मैं प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, बट जैसे आपका एनएच स्लिट के लिए हो जाएगा, फिर एक क्लास आपका सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्यूशन ही होगा डिफ्रैक्शन के ऊपर, ठीक है? ओके सर। ओके सर, ओके। थैंक यू सर, Okay, sir. गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।